Good morning, my dear students. Today we are going to discuss chapter 1 of class 8, that is, let us explore the computer network. This is the learning objective. After the completion of this chapter, you will learn to know what is computer network, what is the need of network, and what is the difference between the different types of network. So let's get started. A computer network is an interconnection of two or more computers that are able to exchange information. What does it mean? It means if you join bunch of computers together, that is called over network. It can be your mobile phone, your desktop, or your smart TV. Now the question arises how these computers in network communicate with each other. वो आपस में किस तरीके से बात करते हैं? They can talk together, they can communicate together with the help of two technology, wired and wireless. In wired, you can use your cables like copper cables, and in wireless, you can use technology like Wi-Fi, radio links, and satellites. Now, this is the purpose why we are using computer network. First point is file sharing. File sharing means you can share your files, your data, your videos, your what do you want, anything you want to share with different computers with the help of this computer network. Second is your resource sharing. Resource sharing means suppose you have 3 computers and only you have single printer at your home. If you have networking, you can share your printer and take printout from any of these 3 computers, right? Next, communication. Communication, I already told you, it's a part of file sharing. You can also communicate these computers under network, communicate with each other. Remote access is the part of client and server technology, which I tell you later. डेटा प्रोटेक्शन. डेटा प्रोटेक्शन में क्या है कि आपका जो डेटा है वो हाईली प्रोटेक्टेड होता है बिकॉज आप एक सर्वर बनाते हैं और क्लाइंट उसे यूज़ करते हैं, तो जितना भी डेटा है वो आपका सारा सर्वर पे सेव हो रहा है. दैट मीन्स डेटा इज़ हाईली प्रोटेक्टेड इन दिस कंप्यूटर नेटवर्क. ओके, दिस इज़ द डायग्राम. बीच सेंटर में आपका एक सर्वर बनाया हुआ है और साइड पे 6 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद द वायर टेक्नोलॉजी. यू कैन सी ये वायर्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड है एंड द सर्वर इज़ द मेन. सहारा का सारा डेटा है वो सारा आपका सर्वर पे सेव हो रहा है और क्लाइंट जो है वो उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं, देन सर्वर. सी इन दिस डायग्राम I have made one client and a server. Client send the request to server कि if they want to use server, the client send the request to server. अगर सर्वर फ्री है और सर्वर उसको रिस्पॉन्ड कर देता है तो क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आती है सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है. नाउ दिस इज द डेफिनेशन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. A computer network in which one centralized powerful computer called the server is a hub to which many less powerful personal computers, which it is also called clients or workstation, are connected. The clients run programs and access data that are stored on the server. In very simple words, like आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन है, nowadays आपके फ़ोन भी आप चलाते हैं, आप लैपटॉप्स भी यूज़ करते हैं, आप टीवी में भी इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन आपके सारे के सारे डिवाइसेस चल रहे हैं. और ये किसके हेल्प से हो रहा है? ये नेटवर्किंग के थ्रू ही हो रहा है कि एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन से आप अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनमें इंटरनेट कनेक्शन से आप काम कर सकते हैं. ओके, लेट्स व्हाट इज़ ट्रांसमिशन मीडिया. ट्रांसमिशन मीडिया मीन्स आप जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपको किसी न किसी मीडिया की ज़रूरत होगी. जब 2 कंप्यूटर आपस में बात करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो दे रिक्वायर्ड वायर टेक्नोलॉजी और अनवायर्ड, राइट. सेंडिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर थ्रू मीडियम इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया. तो ट्रांसमिशन मीडिया 2 टाइप्स का है, गाइडेड एंड अनगाइडेड. आई टोल्ड यू बिफोर, गाइडेड मीन्स yes wired and unguided means unwired. Guided media is again further divided into 3 parts: twisted pair, coaxial cable and fiber optics. Guided transmission media means the data signals are guided along the path like cabling system. I already told you ये आपस में केबल से कनेक्टेड होती हैं. तो दिस इज द कनेक्टर थ्रू विच वी कनेक्ट दिस कंप्यूटर और ये पीछे आप इसको केबल है ये. Now come to twisted pair wires. In twisted pair wires you can see you can see in this diagram, इसमें 2 वायर्स होती हैं जो आपस में ट्विस्ट होती हैं. वन इज़ फॉर कंडक्शन एंड वन इज़ फॉर इंसुलेटर. कंडक्टर्स क्या होता है आपकी? कंडक्टर मीन इट इज़ ट्रांसफर ऑफ समथिंग लाइक इट कैन बी हीट, इलेक्ट्रिसिटी और डेटा, राइट.
और ये डबल हेलिक्स में रैप होता है। रीज़न फॉर ट्विस्टिंग इज़ कि आपकी इसमें क्रॉस टॉक कम से कम होता है, ब्लीडिंग ऑफ सिग्नल्स कम से कम लीक होते हैं। ब्लीडिंग मीन्स लीकिंग ऑफ सिग्नल्स। अगर हम इस दोनों वायर्स को आपस में ट्विस्ट कर देते हैं तो क्रॉस टॉक जो होता है वो हमारा कम से कम होता है। क्रॉस टॉक मीन्स सपोज आप अब डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जो सिग्नल्स की लीकेज है वो कम से कम हो। सेकेंड इज़ एक्सटर्नल सिग्नल्स को भी ये रोकता है। किसी तरीके का कोई बाहरी सिग्नल या बाहरी इंटरप्शन आती है तो ये उसको, इसका जो बनावट है इसकी वजह से वो रुक जाती है। इज इट क्लियर? इट इज़ लो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन मीडियम, इट इज़ वेरी चीप और ये बहुत इजीली कहीं पर मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, राइट। बट इसकी एक ड्रॉबैक है विच आई टेल यू। यस, ट्विस्टेड पेयर एडवांटेज, इसकी एडवांटेज क्या है? ये इनएक्सपेंसिव है एंड रेडीली अवेलेबल है, फ्लेक्सिबल होती है एंड लाइट वेट होती है, ईजी टू वर्क विद एंड इंस्टॉल। एंड द डिसएडवांटेज में फर्स्ट इज susceptibility to interference and noise. Second, attenuation problem. Attenuation problem means loss in signal over a period of distance, right? That means कि अगर हम ट्विस्टेड पेयर को अगर लॉन्ग डिस्टेंस में यूज़ करेंगे तो बीच में से सिग्नल क्या होते हैं? वीक हो जाते हैं, सिग्नल लॉस हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, काफ़ी अगर हम एक से ज़्यादा दूर तक इसको यूज़ करेंगे तो हमें बीच में रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं। रिपीटर्स क्या करते हैं? हमारे सिग्नल्स की को इंक्रीज़ करते हैं। तो हर डिस्टेंस के बाद, सपोज़ आपने 1 मीटर या 2 मीटर की आपने केबल लगाई है, उसके बाद आपको एक रिपीटर लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको एक रिपीटर लगाना पड़ेगा। तो दिस इज़ अ मेन डिसएडवांटेज कि हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेकेंड इज रिलेटिवली लो बैंडविड्थ, इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। Now types of twisted pair. There are two types of twisted pair, STP and UTP. STP means shielded twisted pair and UTP means unshielded twisted pair. Shielded twisted pair is made up of metallic foil or braid to insulate the pair from electromagnetic interface. Unshielded means each wire is insulated with plastic wrap. The difference between STP and UTP is कि वो मेटालिक फॉयल होती है, मेटल में वो रैप होता है, और यूटीपी में क्या होता है? वो प्लास्टिक से रैप होता है। सेकेंड थिंग इज कि वो शील्ड होती है, उसमें ऊपर से एक शील्ड आती है जो कि उसको इंसुलेटेड के लिए, और यूटीपी में उसमें ऊपर से कोई भी शील्ड प्रोवाइड नहीं की जाती है, ठीक है। इसका डिफरेंस क्या हुआ शील्ड देने का? सिग्नल जो होते हैं वो इंटरफेयर्स, जो इनका सिग्नल का जो इंटरफेयर्स है वो प्रोटेक्शन जो होती है इसमें इन केस ऑफ एसटीपी वो ज़्यादा होती है, सिग्नल्स को वो यू कैन से हाईली प्रोटेक्टेड टाइप्स का होता है। तो इसीलिए हम यूटीपी के कंपैरेटिवली हम एसटीपी यूज़ करते हैं, बिकॉज इसके ऊपर एक अलग से शील्ड होती है जो कि हमारे को सिग्नल्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। नाउ कम टू कोएक्सियल केबल यू कैन सी इन दिस डायग्राम। कोएक्सियल केबल में पहले कॉपर वायर है, कंडक्टर है जो कि, फिर उसके ऊपर एक इंसुलेटर, देन शील्ड दी गई है। वाई वी ऑलवेज यूज कॉपर वायर? बिकॉज कॉपर वायर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद एक शील्ड बनाई गई है। शील्ड क्या है? शील्ड आपकी एक मैश की फॉर्म में होती है। उसके ऊपर देखिए आउटर प्लास्टिक शील्ड, एक और इंसुलेटिंग की लेयर दी गई है। इट्स अ हाईली प्रोटेक्टेड। कोएक्सियल केबल आपने देखा होगा थोड़ी मोटी होती है साइज में कंपैरेटिवली ट्विस्टेड के, और इसको आपने देखा होगा कि केबल टीवी वालों की जो केबल होती है जो थोड़ी ब्लैक कलर की और मोटी होती है, वो कोएक्सियल केबल यूज़ करते हैं, बिकॉज इनकी स्पीड जो होती है वो हाई होती है, इसकी प्रोटेक्शन अच्छी होती है, और इसकी कॉस्टिंग जो होती है थोड़ी सी कंपैरेटिवली ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा होती है। नाउ कम टू ऑप्टिकल फायर केबल्स। ऑप्टिकल फायर केबल्स में बेटा लाइट ट्रेवल करता है। It consists of a central glass core surrounded by several layers of protective material. It transmits data in the form of light. You know that कि लाइट की जो स्पीड होती है वो कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा होती है। तो बिकॉज ऑफ दिस ऑप्टिकल फायर केबल्स के जो सिग्नल्स होते हैं वो बहुत डेटा जो प्रोवाइड करते हैं वो एट ए वेरी हाई स्पीड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये एक्सपेंसिव होते हैं बाकियों के कंपैरेटिवली, क्योंकि ये लाइट ट्रैवल करवाता है अपने अंदर से। इट इज़ सुटेबल फॉर हार्श इन्वायरमेंट। हार्श इन्वायरमेंट मीन्स कि जहाँ कहीं कुछ नहीं पहुँच पाता, जहाँ ट्विस्टेड पेयर नहीं लग पाती, जहाँ पे कोएक्सियल हम यूज़ नहीं कर पाते, हम अब फाइबर केबल्स लगा सकते हैं। बट इसकी ड्रॉबैक क्या है कि फायर केबल्स को हम आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते, कनेक्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। जब ट्विस्टेड पेयर को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ
रिपीटर्स, यस राइट। बट ऑप्टिकल फाइबर केबल दो फाइबर को आपस में जोड़ने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वायर्स तो है नहीं कि आपस में हम कनेक्ट कर दें। दैट इज़ वाई दिस इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर cables. Now this is the exercise based on the previous lecture. These are the questions. What is computer network? What is transmission media? What is the difference between twisted pair cables and coaxial cable? What are the some characteristics of twisted pair cable? Question number 4, define coaxial cable. Question number 5, what are the advantage and disadvantage of twisted pair cable? Question number 6, difference between client and server. Question number 7, what is the need of computer network? Explain in brief. Now I request you to please write it down in your fair notebook. If you have any problem or any doubt, please ping me on my personal window. Thank you.